اس کہانی میں ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ سمندر سے اچانک سے پانی کہیں غائب ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگ یہاں پر خالی اور سنسان زمین کو دیکھتے ہیں جو ہم سب کو ڈرا سکتی ہے، اور آخرکار جو پانی سمندر سے غائب ہوا وہ کہاں پر چلا گیا، کیا یہ دوبارہ واپس بھی آئے گا یا نہیں؟ اور اب ان سارے سوالات کا جواب مووی دیکھنے کے بعد ہی ہم سب جان سکتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مووی آپ لوگ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والی ہے، جو کہ اسی سال ریلیز ہوئی ایک سائنس ایڈونچر مووی ہے جس کا نام ہے سروائیو۔ تو آئیے ہم لوگ اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے اس مووی کو آخر تک دیکھیں گے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیٹے مائک کی سالگرہ منانے کے لیے سمندر میں آئے تھے۔ یہاں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، پھر ہم مائک کی والدہ کو دیکھتے ہیں جو کہ پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے تیرنے کے لیے، اور مائک اور اس کے والد مچھلی پکڑنے میں مصروف تھے۔ لیکن اچانک مائک کی ماں کو، جس کا نام جولین ہے، سمندر میں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک سمندر میں کوئی اسے کھینچ لیتا ہے، ساتھ ہی ان کی کشتی پر جو آلات ہیں وہ بھی کچھ غیر معمولی سا رویہ دکھانے لگتے ہیں۔ مائک اور ٹام اس بات پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ وہ مچھلی پکڑنے میں مصروف تھے۔ ڈوبتی ہوئی جولین خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ٹام کو آوازیں دیتی ہے، لیکن ٹام کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہاں پر جولین کو محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ خود بھی۔ اور پھر ہم ٹام کو دیکھتے ہیں جو اس چیز کو نوٹس لیتے ہوئے جولین کو دیکھتا ہے اور اسے بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ مائک کشتی کا انجن چلا کر اپنے موم اور ڈیڈ کے پاس لے جاتا ہے۔ اب ٹام جولین کو بچا لیتا ہے اور مائک اور کیٹی ان دونوں کو کشتی کے اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح جولین کی جان بچ جاتی ہے۔ اب کشتی پر ٹام اپنی بیٹی پر غصہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ جو بھی تیرنے کے لیے جاتا ہے اس پر دھیان رکھا جاتا ہے۔ تم نے یہ اصول کیوں توڑا؟ اگر تمہاری ماں کو کچھ ہو جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ پھر کیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سب سے معافی مانگ لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے مائک کی سالگرہ مناتے ہیں۔ اسی دوران کیٹی کے بوائے فرینڈ کی کال آتی ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ کے پیچھے شہر میں ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کیٹی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت وہ لوگ محفوظ جگہ پر نہیں تھے۔ یہ بات جا کر وہ اپنے موم اور ڈیڈ کو بتاتی ہے، جس کے بعد یہ لوگ اپنی کشتی کی سیفٹی کو چیک کرنے لگتے ہیں۔ چیک کرتے ہوئے یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ بہت ساری ویلز اور شارکس ان کی کشتی کے آس پاس گھوم رہی ہیں۔ ٹام جانتا تھا کہ ویل یا شارک ایسا کسی بڑے خطرناک طوفان کے آنے سے پہلے کرتی ہیں۔ اب نہ آنے والے خطرناک طوفان کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے انہیں ان شارکس سے نپٹنا تھا۔ لیکن اسی دوران ان کی کشتی کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے، جسے چیک کرنے کے لیے ٹام نیچے پانی میں جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کشتی کے نیچے ایک بہت بڑا ڈینٹ آ چکا تھا جو یقیناً کسی بڑی شارک نے دیا تھا۔ یہ چیک کرنے کے بعد جب ٹام واپس آیا تو وہ بہت بری طرح سے زخمی تھا، اور یہ دیکھ کر جولین اس کے زخموں پر ٹانکے لگاتی ہے۔ یہاں پر ٹام اپنی فیملی کو بتاتا ہے کہ شارک کے دیے ہوئے ڈینٹ کی وجہ سے ہم بوٹ کو آگے نہیں لے جا پائیں گے، اور اب ان کے پاس صرف یہی آپشن رہ گیا تھا کہ یہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلائیں، لیکن سگنل بھی نہیں تھے۔ ان کی بوٹ کا کمیونیکیشن کوئی بھی سگنل پک نہیں کر رہا تھا۔ اب اس مشکل وقت میں ٹام اپنے کھانے پینے کا سامان چیک کرتا ہے۔ ان کے پاس صرف 4 دن تک کا پانی تھا اور کچھ بھی نہیں، لیکن تسلی انہیں اس بات کی تھی کہ یہ لوگ ایک شپنگ روٹ پہ تھے اور یہاں سے کوئی نہ کوئی شپ انہیں گزرتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اب ان کی انہی باتوں کے دوران انہیں باہر سے ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ جب انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا میٹورائڈ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ان کی شپ سے ٹکرا سکتا تھا، اور اسے بچنے کے لیے ٹام جلدی سے اپنی بوٹ کا انجن سٹارٹ کرتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی بوٹ برباد ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی بوٹ کا انجن برباد ہو جاتا ہے اور دوسرا میٹورائڈ بھی ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ کچھ اور تو نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بوٹ کے نچلے حصے میں جا کر لائف جیکٹ پہن لیتے ہیں۔ بعد ازاں ان لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے اور یہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب تک انہیں ہوش آتا ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں، حالانکہ انہیں چوٹیں بہت زیادہ آئی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اب ان کی بوٹ کے اندر ایک بہت بڑا ہول ہو چکا تھا، لیکن اس سے پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب یہ پورا خاندان اپنی بوٹ سے باہر آ کر دیکھتا ہے تو یہ منظر دیکھ کر وہ سب کے سب حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بوٹ کے پاس زمین پر مچھلیاں پڑی اور تڑپ رہی تھی، اور ان کی بوٹ ایک پتھریلے علاقے میں تھی جہاں پر پانی بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے سیارے پر آ گئے ہیں۔ یہ جگہ پوری طرح سے بدل چکی تھی، جہاں کل رات تک پانی تھا وہ جگہ اب اونچے اونچے پہاڑوں اور گڑھوں کی طرح دکھ رہی تھی۔ اب ٹام جلدی سے اپنا کمپاس نکالتا ہے اور سمت دیکھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور زمین کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ زمین کے پول چینج
हो गए हों, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल चला गया, और इसलिए जहाँ पर पहले लोग बसते थे यानी कि जमीन थी, समुद्र का सारा पानी वहाँ पर चला गया था और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। और इस चीज का पता लगाने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक और खौफनाक बात टॉम इन्हें ये बताता है कि इस सब के बीच जो इंसान जमीन पर जिंदा थे वो लोग मारे जा चुके हैं। अब कैटी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। खैर अब जूलियन यहाँ पर अपने बच्चे कुछ खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम का बेटा यानी कि माइक सारे बर्थडे के गुब्बारे हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो इन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो इसे ये थी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि इसे रिस्पॉन्स मिल जाता है और ये रिस्पॉन्स इसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समुद्र की शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताता है कि जमीन के जो पुल चेंज हुए वो तकरीबन एक हफ्ते में अपनी जगह फिर वापस आ जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते के बाद समुद्र का पानी अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इस वक्त लहरें बहुत खतरनाक होंगी, इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि कोई ऊंची जगह देखो जहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो। और ये बात सुनते ही जूलियन फौरन अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपके सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया और यहाँ सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को रख लें, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए वो करूंगा। और अब इसलिए कैप्टन इसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी कि समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी, तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इसी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो इसकी मदद करने के लिए इसे पानी भी पीने के लिए देता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद शुक्रिया अदा करने की बजाय टॉम पर हमला कर दिया और ये चीज दूर खड़ी जूलियन भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके इसकी जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा सकी थी, इसलिए वो जल्दी से बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वो केटी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि वो आदमी इनकी बोट तक पहुंच जाता है और इससे बचने के लिए जूलियन बाथरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ पर आकर वो अपने जख्मों को सिलाई करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट की छानबीन करता है और जैसे इसे यहाँ पर खाना मिलता है तो वो खाना खाना शुरू कर देता है, जिससे लग रहा था कि वो पिछले काफी दिनों से भूखा था। खाना खाने के बाद जब वो जूलियन को देखने गया तो वो देखता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो कैबिन खाली था। दरअसल जूलियन बोट में हुए सुराग से निकलकर यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन इस आदमी का जो डॉग होता है वो जूलियन को देख लेता है और अब मजबूरी में जूलियन को इस डॉग को चुप करवाने के लिए इसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वो इस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे वो इसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर जूलियन फिर से इस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो इसके बालों से पकड़कर इसे खूब मारता है, टॉर्चर करता है और जूलियन का गला दबाने की कोशिश करता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए इस किलर से लड़ने लगती है, लेकिन केटी जो ये सब कुछ कैबिन से देख रही थी इसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे इस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। अब जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस बोट से बाहर निकलती है। अब बोट से बाहर निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन इसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। खैर बाहर जाने के बाद केटी और माइक अपने वालिद की मुर्दा लाश को देखकर रोने लगते हैं। इन्होंने इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी जो इनके साथ हो गया था। माइक अपने आप को कसूरवार मानता है कि ना मैं वो रंगीन गुब्बारा ऊपर छोड़ता और ना ये आदमी इन्हें देखकर यहाँ पर आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने शोहर से लिपट कर रो रही थी कि तब भी वो देखती है कि वो किलर इनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया था और अब इसलिए इनके लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करते हैं, लेकिन यह लगता है कि वो किलर इनका पीछा करना छोड़ चुका है। और यहाँ पर माइक रो रहा था। केटी इसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन माइक पानी पीने से भी इनकार कर देता है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि जूलियन ने देखा कि वो किलर अभी भी इनके पीछे है। अब इसलिए तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग
थक भी चुके थे, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते तो वो किलर इनके पीछे ही होता। अब ये लोग रुकते नहीं, ये मुसलसल भागते रहते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जहरीला पानी मौजूद था। हालांकि इन्हें यहाँ से जाते वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जूलियन अपने बच्चों को यहाँ से गुजरने का हुक्म देती है। यहाँ से निकलते वक्त इनकी हालत खराब हो गई थी और जूलियन को एहसास हुआ कि माइक को डिहाइड्रेटेड हो चुका है। इनके पास पीने के पानी की कुछ आखिरी बूंदें बची थी जो कि इन्होंने माइक को दे दी, लेकिन इतने सारे पानी से कुछ कहाँ होने वाला था। अब यहाँ पर माइक की बहन केटी भी हिम्मत हार चुकी थी। इसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो लोग यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं। वो अपनी मौत को मान चुकी थी और वो इन दोनों से भी यही करने के लिए कहती है, लेकिन जूलियन इसे डांट कर कहती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर इन लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने पर इन्हें एक त्यारा दिखाई दिया जो कि कभी सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग इस त्यारे के अंदर छुप जाते हैं और जूलियन एक आखिरी बार अपनी फैमिली की तस्वीर को देखती है जो कि इन्होंने कल रात ली थी। इस तस्वीर को देखकर सब लोग टॉम को याद कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे और केटी और माइक भी सो चुके थे, लेकिन जूलियन बेचैन थी। वो त्यारे से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पाती है कि रात के अंधेरे में भी किलर ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किलर भी इसे देख चुका था। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किलर इसके करीब आता है ये उस पर हमला कर देती है और इस बार जूलियन गुस्से में थी। वो इस पर इतने हमले इतनी शिद्दत से करती है कि इस बार इसकी जान ले लेती है और आखिरकार इनके सर से किलर का खतरा टल जाता है। अब जूलियन भी सुकून की नींद सोती है। अब अगली सुबह जब ये उठे तो देखते हैं कि किलर की लाश बहुत ही बुरी हालत में थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि खाली समुद्र भी काफी ज्यादा खतरनाक है। खैर अब इन्हें वहां तक पहुंचना था जहां पर वो कैप्टन की सबमरीन थी। अब जहां पर जूलियन अपना मैप देख रही थी वहां से आगे जाने के लिए, लेकिन माइक को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो आगे जाकर पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने इसे मना किया था पानी पीने के लिए क्योंकि ये तालाब जहरीला था, लेकिन माइक इतना प्यासा था कि इसने जूलियन की बात नहीं सुनी और पानी पीने लगा और जूलियन और केटी इसका सर पकड़कर पानी से बाहर निकालना पड़ा। अब पानी पीने की वजह से माइक बीमार हो चुका था, इसलिए जूलियन और केटी वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं जहां पर इन लोगों ने अभी कुछ ही देर आराम किया था। तभी जूलियन को यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। बाहर जाकर जब इसने देखा तो बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए इन्होंने फिर से भागना शुरू कर दिया। अब वो दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई है। एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर्स में बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते हुए सब लोग एक कंटेनर में जाकर अंदर से लॉक कर लेते हैं और जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाती है और दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। केकड़े की एक बहुत बड़ी भयानक फौज इनके पीछे थी। अब इनसे बचने के लिए जूलियन और इसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए थे। अब जूलियन जैसे ही ऊपर चढ़ती है केकड़ा इसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से इसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद केटी और माइक देखते हैं कि वो केकड़े इस कंटेनर को काटते हुए इसके अंदर चले जाते हैं और इसके अंदर मौजूद इन लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से इन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद ज्यादा थी, ये लोग इनके सामने नहीं टिक पाते। खैर अब अगली सुबह जब जूलियन को होश आया तो इसने पाया कि इसके दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो बहुत बुरी तरह डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक और भीड़ जगह थी कि यहाँ पर कोई भी आसानी से मर सकता था। अब जूलियन इन्हें खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से इसे केटी और माइक आते हुए दिखाई देते हैं जो कि असल में खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। खैर अब वहाँ पर केकड़े नहीं थे क्योंकि वो आगे जा चुके थे। अब ये देखकर जूलियन की जान में जान आती है। अब जूलियन अपने केकड़े के काटे हुए जख्म को ठीक करती है, जबकि माइक अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करता है। खैर अब इसके बाद जूलियन इस कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समुद्र का पानी वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है और इसलिए तो ये समुद्री क्रिएचर्स फिर से यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अब वो इस कैप्टन तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन का इस्तेमाल करे, क्योंकि सारी भागदौड़ में इनका मैप भी कहीं पर गिर गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और माइक इसे देख लेता है। ये लोग अब तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा था क्योंकि वहां पहुंचने तक इन्हें एक टास्क वेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए ये लोग बीमार हो सकते हैं, इनकी जान भी जा सकती है। अब इसके बाद केटी को भी अपनी माँ पर शक होने लगता है कि वो इन्हें बचा भी पाएगी या नहीं। अब इनके दरमियान बहस होने लगती है और जूलियन अपने बच्चों को डांटती है और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से किस्मत इन्हें धोखा दे देती है। वहां पर लैंड स्लाइड होने लगती है, जहां पर जूलियन जो सबसे पीछे थी इसके आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस जाती है। अब केटी अपनी माँ के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो इसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी और अब इसलिए केटी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब ये लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर
کوئی بھی نہیں ملتا۔ یہ زور زور سے سبمرین کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے، لیکن تبھی پیچھے سے ایک کیپٹن آتا ہے جو کہ بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ کیپٹن انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو اب میرے بچنے کے چانسز بہت کم ہے اور سبمرین میں 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر کیٹی جلدی سے واپس پیچھے مڑتی ہے۔ وہیں جولین کی طرف پھر سے ان کیکڑوں کا سیلاب آنے لگتا ہے، جہاں پر وہ اپنی گن سے ان سب کو شوٹ کرنے لگتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی کیکڑا آ کر اس پہ حملہ کرتا، کیٹی اوپر سے اسے ہاتھ دیتی ہے اور آخرکار اس کی مدد سے جولین یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ لوگ جلدی سے بھاگتے ہوئے سبمرین تک آتے ہیں۔ اب یہ لوگ زیادہ وقت گوائے بغیر سبمرین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ان بھیانک کیکڑوں کا سیلاب بھی ان کے پیچھے ہی آ جاتا ہے، لیکن تبھی ایک بہت بڑی بھیانک سمندری لہر انہیں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ 100% فٹ اونچی تھی، دیکھنے میں بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ زوردار طریقے سے ان کی سبمرین سے آ کر ٹکراتی ہے، جس سے یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جولین کو جب ہوش آتا ہے تو حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی سبمرین پانی میں نہیں تھی، بلکہ سمندر کی وہ بڑی لہر ان کی سبمرین کو بہا کر ایک شہر میں لے آئی تھی جو کہ تباہ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر صاف سمجھ آ رہا تھا کہ زمین سے انسانوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ اور بس یہی سین دکھاتے ہوئے یہ فلم، یہ کہانی یہیں پر ختم ہو